learners, once again welcome back to my channel, that is NT UGC NET Paper 2 Education. Up till now we have studied unit number 2nd, C section, and today we are going to study the same but with different topic. आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का C section. In that the topic is signaling theory versus human capital theory. Now, when we are talking about the signaling theory, I hope the audio video slide is clear to you. When we are talking about the signaling theory or human capital theory, but before that it becomes really very important to understand that what is it and the basic concept about it. So without further ado, let's just start with today's session. If you haven't liked or subscribed this channel, then do subscribe this channel so that time to time आपको notifications भी सारी मिलती रहे whenever I am uploading any topic related to an NTA NET examination paper 2 education. So let's just start with today's session. See, in the slide you can see over here, we are actually studying unit number C, concept of economics of education, and in that, in the last video we have already completed with the topic that is cost benefit analysis versus cost effective analysis in education. क्योंकि हमारा पेपर 2 एजुकेशन में है तो उस हिसाब से हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है वो हमें पढ़ना है. वो हमने पढ़ भी लिया. आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक. सेकेंड टॉपिक एज यू कैन सी ओवर हियर, इट डील्स विद इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन. इकोनॉमिक रिटर्न्स मतलब कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका हायर एजुकेशन पे किस तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है. देन आफ्टर टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिग्नलिंग थियरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थियरी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन. See, the topic second talks about economic returns to higher education. First point कहता है, higher education in the 21st century has become increasingly important for both individual and the larger society. What is it trying to say? That in today's modern competitive world, if you are not having higher education, if you are not having educational qualification with yourself, then it becomes really very difficult for the individual or the society to sustain in a positive way or in a progressive manner. So it has become increasingly important to pursue higher education. Now, if we are talking about pursuing higher education, then definitely it is going to cost you or even any individual some amount of finance or money. So that is why the topic economic returns to scale. जब भी इकोनॉमिक टर्म आती है तो मतलब कि पैसे की बात हो रही है, और रिटर्न्स मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसा तो उसके ऊपर रिटर्न क्या आता है, आप उसके लिए जो पैसे डाले हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, और रिटर्न किस पर्टिकुलर अरीना में देखना है तो हायर एजुकेशन में. यानी कि आपने जो भी पैसा हायर एजुकेशन परस्यू करने में डाला है तो उसका रिटर्न आपको क्या मिला है, इंडिविजुअल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे. इंस्टीट्यूशन भी तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्चा करता है. इंडिविजुअल जो है वो अपने ग्रोथ के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करता है. तो वो ये टॉपिक समझाना चाहते हैं. सेकेंड पॉइंट, it is important for individuals for the sake of enriched life, enriched status and greater earning power. ज़्यादा अगर आपको प्रॉपर स्टेटस या अच्छे से कमाना है then it is going to help you build up that. क्या हेल्प करेगा? when you are pursuing your higher education, it will going to give you or lead you greater earning power. It is important for the sake of economic prosperity in general as well as for the advancement of democracy and social justice. एक इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहा है, हजारों करोड़ों लोग अगर पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूलिंग के बाद का एजुकेशन ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में एडवांसमेंट आ रहा है, लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है नेशनल लेवल पे भी, और सोशल जस्टिस भी प्रिवेल कर रहा है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द नेशन इज गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी. फिर कहते हैं मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट प्राइसिंग ऑफ एजुकेशन आर कंसर्न विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं. पहला है, इज हायर एजुकेशन अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट? क्या इसके बाद नौकरी मिलेगी
करेगी तो अच्छे रिटर्न्स ले पाएगी। वो जॉब करने जो भी इंडिविजुअल जाता है उसको अच्छी अर्निंग उसके प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, उसने जो पढ़ा है उस हिसाब से क्या उसको वो अर्न करने में हेल्प करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर दूसरा है, इज हायर एजुकेशन अफोर्डेबल, क्या अफोर्डेबल है टू स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल इनकम फैमिली। ये भी तो एक गवर्नमेंट को सोचने की बात है। तो ये अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपकी फीस रखी जाती है। फिर इज हायर एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अफोर्डेबल है, लो इनकम फैमिली के लिए एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब कि अफोर्डेबल मतलब कि क्या आप इतने पैसे निकाल पाओगे। एक्सेसिबल मतलब कि सपोज आप कोई गांव में रह रहे हो और आपकी स्कूल या इंस्टीट्यूशन या आपकी कॉलेज दूर है, तो क्या रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ पाए, तो उसे एक्सेसिबल कहते हैं। इज हायर एजुकेशन अ गुड वैल्यू, क्या उसके बाद एक प्रॉपर बिल्डअप या अच्छे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम ले पाएंगे या कर पाएंगे। हाउ आर द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन शेयर्ड बिटवीन स्टूडेंट्स, देयर फैमिलीज एंड इवन द गवर्नमेंट। यानी कि हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में या फैमिली एक तरीके से या गवर्नमेंट के लिए आप कह सकते हो कि अफोर्डेबल हो जाता है या फिर पॉसिबल हो जाता है कि इतना खर्चा इसमें करेंगे तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट टू। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन को अगर डेवलप करना है तो उसके एस्पेक्ट्स भी देखने बहुत ज़रूरी हो जाता है, वेदर इट इज स्टूडेंट लेवल, वेदर इट इज इंस्टीट्यूशन लेवल, पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल, कोई भी हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now see, let's move to second topic. Two theories are existing which attempt to explain the causal relationship between education and earning. Causal मतलब कि cause and effect, cause and effect relationship यानी causal। तो ऐसी दो थियरीज है हायर एजुकेशन के ऊपर जो हमें समझ में लाती है कि उसका कॉज अगर ये है तो इफेक्ट क्या होगी। तो वो ही हम समझ लेते हैं कौन सी दो थियरी, यू ऑलरेडी नो, ह्यूमन कैपिटल थियरी एंड सिग्नलिंग थियरी। ह्यूमन कैपिटल थियरी क्या कहती है, ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों ही थियरी हायर एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड है। सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज गिवन टू यू। नाउ सी, ह्यूमन कैपिटल थियरी कहती है, it argues intuitively that education endows an individual with productivity enhancing human capital and that this increased productivity results in increased earnings in the labor market। कितनी अच्छी बात की गई है। आगे देखते हैं, competitive market theory does after all require that laborers receive a wage equal to their marginal product। यानी कि ह्यूमन कैपिटल थियरी हमें ये समझाती है कि हायर एजुकेशन जितना आप लोगे ज़्यादा उतना आपको बेनिफिट होगा मोर अर्निंग्स करने में, यानी पैसे ज़्यादा आप कमा पाओगे। और उतना ही नहीं, ये थियरी ये भी कहती है, एक जस्ट अ मिनट, मोर अर्निंग्स। इनफैक्ट ये थियरी, ह्यूमन कैपिटल थियरी ऐसा कहती है कि हायर एजुकेशन अगर आप ज़्यादा लोगे या लोगे भी तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगी। सो स्किल्स ग्रोथ, स्किल्स डेवलपमेंट होगा या फिर प्रोफिशिएंसी या पर्सनल ग्रोथ भी हो पाएगा और उससे आप अच्छे से मॉनिटरी बेनिफिट कर पाओगे अपने लिए और आगे जाके समाज के लिए भी मॉनिटरी अर्निंग्स आपकी अच्छी हो पाएगी। तो यानी कि ह्यूमन कैपिटल थियरी कहता है कि हायर एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्किल के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंक्रीमेंट इन मॉनिटरी अर्निंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, इट सेज, इट आर्ग्यूज इंट्यूटिवली दैट एजुकेशन एंडोज एन इंडिविजुअल विद प्रोडक्टिविटी दैट इज योर एबिलिटी, योर स्किल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, enhancing human capital, and that is increased productivity resulting into increased earnings in the labor market।
यानी कि लेबर मार्केट, यानी कि कहीं पे भी अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रिवेल कर रही है और आप जा रहे हो तो आपको अच्छे अर्निंग्स हो पाएंगे। कैसे? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, एबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कैसे? तो आपने हायर एजुकेशन लिया है। सो दैट इज हाउ ह्यूमन कैपिटल थियरी इज इंडिकेटिंग दैट हायर एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर एबिलिटी, स्किल्स एंड thereby to have more earnings. I hope it is clear. फिर देखते हैं सिग्नलिंग थियरी। नाउ सिग्नलिंग थियरी और ह्यूमन कैपिटल थियरी के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले तो सिग्नलिंग थियरी है क्या वो देखते हैं। Signaling theory offers an oppositional argument which holds that education only reflects inherent human capital. This inherent human capital, not education itself, is what increases productivity and leads to higher wages. ये टोटली ऑपोजिट कह रहा है ये ह्यूमन कैपिटल थियरी के हिसाब से। सिग्नलिंग थियरी ऐसा कहता है कि हायर एजुकेशन नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, पर अगर कोई इंडिविजुअल हायर एजुकेशन लेता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, पर वो प्रोडक्टिविटी इनहेरेंट है, वो बचपन से ही सीख के आया है या उसके अंदर है, जो कि अब वो उसी पढ़ाई के हिसाब से या हायर एजुकेशन के हिसाब से वो अपनी इन्नेट स्किल जो है अंदर बची हुई, अंदर रही हुई जो स्किल्स है वो अभी बाहर ले पा रहा है, ला पा रहा है। सो हायर एजुकेशन अगर आप ज़्यादा लेते हो या हायर एजुकेशन परस्यू भी करते हो तो सिग्नलिंग थियरी ये कहता है कि आपकी इन्नेट अंदर जो छिपी हुई स्किल्स है, आपकी कैपेबिलिटी है, वो आप बाहर ले पाओगे इंडिविजुअल लेवल पे। जबकि ह्यूमन कैपिटल थियरी कहता है कि हायर एजुकेशन आप लो तो आप नई नई स्किल्स भी सीख पाओगे, पर सिग्नलिंग थियरी कहता है कोई नई स्किल्स आप नहीं सीख पाओगे। स्किल्स ऑलरेडी आपके अंदर होती है, आप जस्ट उसे बाहर निकालते हो हायर एजुकेशन के थ्रू। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल थियरी एंड सिग्नलिंग थियरी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं ह्यूमन कैपिटल थियरी। सी, ह्यूमन कैपिटल थियरी रिफर्स टू द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। Aggregate stock of competencies, knowledge and social and personal attributes embodied in the ability to create intrinsic and measurable economic value. फिर से देखते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, आपके अंदर जो छिपी हुई कॉम्पिटेंसी है, एबिलिटी है, नॉलेज है, सोशल नॉलेज है या कैपेबिलिटीज है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी आपके अंदर जो छिपे हुए हैं, वो उसके साथ साथ यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यूज के साथ साथ वो और भी न्यू स्किल डेवलपमेंट करता है। ह्यूमन कैपिटल थियरी व्यूज ह्यूमंस एंड इंडिविजुअल्स एज इकोनॉमिक यूनिट्स एक्टिंग एज देयर ओन इकोनॉमी। The role of human capital is widely discussed in economic development, productivity analysis, innovation, public policy, and education. This is indicating that this particular concept is directly related with the economic subject. So this topic has been came into existence from the economic subject, and then after it started applied in different arenas of work. So I hope this is clear to you that human capital theory is discussing, or you can say is focusing upon the economic development, productivity analysis, public policy at a larger level, at a major level, at a macro level. तो यानी कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है, और एक इंडिविजुअल नहीं, सारे इंडिविजुअल, हजारों लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स अगर हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो धीरे 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 करके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सोसाइटी लेवल पे आता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, तो ऐसे नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। देन देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डिटर्मिनेंट्स मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमंस या ह्यूमन कैपिटल। तो नंबर 1 पे है एजुकेशन। कैसे? तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन परस्यू आप अच्छे से स्किलफुल एजुकेशन लोगे उतना स्किल डेवलपमेंट होगा आपका, और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका क्या होगा? ग्रोथ भी होगा पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, एंड देयर बाय इट विल हेल्प यू टू गेन मोर बेनिफिट्स मॉनिटरी वाइज। तो स्किल डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, हेल्थ सर्विसेज। ऑफ कोर्स इफ
you are having higher education if you are educated, not only the basic one, but अगर आपने हायर एजुकेशन ली है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको एक नैरो आप सोच के नहीं चल रहे हो, लेकिन आप ब्रॉड व्यू से सोच के आप ये समझ लेते हो कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो या कौन सी चीज़ें आपको हेल्थ में बेनिफिट कर पाती है। तो दैट इज़ वाई हेल्थ सर्विस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और वो भी एक फैक्टर है जो कि ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर बनाने में या फिर आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव लाइफ जीने में हेल्प करता है। और वो किससे आएगा? हायर एजुकेशन से। देन टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल आईसीटी का यूज़ भी आप समझ जाओगे या सीख जाओगे। द एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप कितने सारे अभी तो एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, नाम नहीं लूंगी, बट इट इज देयर एंड यू ऑल नो एंड यू ऑल आर यूजिंग। तो वो टेक्नोलॉजी के यूज से अभी हम क्या कर पा रहे हैं? सो वी आर एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग अप अवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो दैट इज हाउ वी कैन से हायर एजुकेशन इज ऑल्सो getting affected with the help of ICT or technology. तो that is nothing but technology is also affecting the higher education and human capital. तो वो एक अभी आप देखो सोशल मीडिया के थ्रू आप कितना ज़्यादा नॉलेज ले पा रहे हो, तो वो भी आपका ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट कर पा रहा है। देन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफकोर्स ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को रिलेटेड करके दी गई है, बट वी हैव टू डील, you can say we have to understand it from the व्यू पॉइंट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज हम एजुकेशन फील्ड का पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर टू एजुकेशन है, एंड दिस ऑल आर एप्लीकेबल इन आवर फील्ड ऑल्सो। फिर देखते हैं सिग्नलिंग थियरी। Signaling theory was initially developed by Michael Spence based on an observed knowledge gaps between the organizations and prospective employees। ये important है। It might be possible कि एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सिग्नलिंग थियरी वॉज डेवलप्ड बाय whom? तो माइकल स्पेंस वॉज द पर्सन who from the observed knowledge by himself he observed the gaps that was prevailing between the organizations and the prospective employees। एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और उसके वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक गैप थी। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया, डेवलपमेंट की थियरी, एंड देन आफ्टर सिग्नलिंग थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। He said signaling occurs when a person in the market who has information that others do not have, known as an insider, triggers selling or buying behavior by those who do not have information because of the action of that insider। थोड़ा डीप में आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिग्नलिंग थियरी इकोनॉमिक्स के ऊपर से आई है। तो उन्होंने क्या रिसर्च किया? ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, हु वॉज ऑफ द ओपिनियन? माइकल स्पेंस वॉज ऑफ द ओपिनियन कि सिग्नल इस तरीके का एक हम ट्रिगर या टूल के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक पर्सन अगर सपोज मार्केट में कुछ सेल करने जाता है जिसके पास इंफॉर्मेशन है और दूसरे के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके जो इनेट स्किल्स है, उसके अंदर रही छुपी हुई जो एबिलिटीज़ है, वो उससे ट्रिगर हो जाएगी और फिर वो जो भी चीज़ें सेल करने जा रहा है मार्केट में, वो अच्छे से उसके वो नॉलेज के साथ साथ, वो इनर स्किल के साथ साथ वो अच्छे से अपना गोल अचीव कर पाएगा और वो चीज़ें भी अच्छे से मार्केट में बेच पाएगा, रादर देन दोज हु डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दैट इनसाइडर। दूसरे के पास वो टैलेंट या स्किल नहीं है, इनेट नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सिग्नलिंग थियरी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन और फोकसेस अपॉन द इनेट एबिलिटी, जो पहले से छुपी हुई एबिलिटी है वो। फिर कहते हैं स्पेंस इन 1973 यूटिलाइज इन द लेबर मार्केट मॉडल टू मॉडल द सिग्नलिंग फंक्शन ऑफ एजुकेशन। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स लैक इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ जॉब कैंडिडेट्स। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? जो आपको जॉब देते हैं, जो कि ओनर है कोई कंपनी के। तो पोटेंशियल किसे कहेंगे? पोटेंशियल एम्प्लॉयर मतलब जो कि कुछ एस्पायरेशंस रखते हैं अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों से। तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? पोटेंशियल ओनर बोल लो या एम्प्लॉयर बोल लो, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लैक मतलब कमी है इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज़ की? अबाउट क्वालिटी ऑफ जॉब कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स लेने हैं उसको जॉब पे, उसको नॉलेज ही नहीं है। ये माइकल स्पेंस ने कहा था 1973 में। ही सेड द कैंडिडेट्स therefore obtain education to signal their quality and reduce information asymmetries। तो उस वजह से क्या हुआ? जो जॉब करने जाते हैं वो लोगों ने
समझा कि अगर हमें प्रॉपर जॉब करनी है, अच्छे कमाई करनी है, हमारे अंदर स्किल्स है, एबिलिटी है, तो हम एजुकेशन के ज़रिए अपनी एबिलिटी बाहर किसी को दिखा पाएंगे. सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि सिग्नलिंग थियरी कहता है कि एजुकेशन से आप इननेट एबिलिटी बाहर ले पाओगे. कैसे ले पाओगे? कोई अगर आप जॉब पे जाते हो, आपके अंदर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोग कोई पूछेंगे कि जहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे, कि सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू शो ऑफ, और यू कैन से टू शो केस योर इननेट स्किल्स. So that is what Michael Spence also told in 1973. I hope it is clear to you. आगे देखते हैं. दिस इज presumably a reliable signal because lower quality candidates would not be able to withstand the rigors of higher education. Lower ability जिसमें है, जिसमें इननेट कैपेबिलिटी ही नहीं है, उनमें क्वालिटी कैंडिडेट्स आप नहीं कह सकते. तो ये क्या होगा, तो वो लोअर एबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको नहीं लेगा वो एम्प्लॉयर, और हायर कैलिबर वाले को लेगा. सो दैट इज़ वाई माइकल स्पेंस ने ये बोला है कि सिग्नलिंग थियरी ये फोकस करती है कि हायर एजुकेशन लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर छिपी हुई स्किल्स को आप बाहर ले पाओ. ये पूरा जिस्ट है ये पर्टिकुलर स्पेंस मॉडल का या फिर सिग्नलिंग थियरी का. स्पेंस मॉडल स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन कैपिटल थियरी. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट टू ह्यूमन कैपिटल थियरी है. क्यों? क्योंकि ही डी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड फोकसेस इंस्टेड ऑन एजुकेशन एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट अदरवाइज अनऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब कैंडिडेट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. अभी ही हमने देखा है, बट वंस अगेन लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट एंड क्विकली रिकैपिटुलेट दैट. See, the human capital theory argues that education increases productivity and rises wages. तो अभी हमने पढ़ा, हायर एजुकेशन ज़्यादा लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज एबिलिटी के साथ साथ आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होगी. ये प्रोडक्टिविटी आपकी नई स्किल्स है, न्यू स्किल्स जो आप डेवलप करोगे, जो कि आपको आती नहीं है पर आप पढ़ाई के थ्रू डेवलप करते हो. तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी उसके बारे में है. सिग्नलिंग थ्योरी स्टेट्स दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड अनऑब्जर्व्ड एबिलिटी. अनऑब्जर्व्ड का मतलब होता है इननेट, अंदर छुपी हुई एबिलिटी आपके अंदर जो है वो एजुकेशन के थ्रू बाहर आ पाएगी. फिर कहते हैं human capital theory according to Skulls 1963 and Becker 1964 suggests that education has a positive cause effect relationship on student ability, which is a competitive labor market, which in a competitive labor market translates into higher earnings. Those with education can earn more because they learn. पता चल गया? यानी कि ह्यूमन कैपिटल थियरी ऐसा कहता है कि अगर एजुकेटेड पर्सनल अवेलेबल है, लेबरर्स अवेलेबल है, ह्यूमन बींग्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वो लोग क्या कर पाएंगे, वही एबिलिटी जो उन्होंने डेवलप की है पढ़ाई के ज़रिए, उससे वो हायर एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट भी कर पाएंगे और उसके साथ हायर अर्निंग्स भी उनको हो पाएगी. यानी कि एजुकेशन का रिलेशन डायरेक्टली हायर अर्निंग्स पे हो जाता है. और सिग्नलिंग थियरी स्पेंस के हिसाब से क्या है, वो सजेस्ट करते हैं एजुकेशन डज नॉट इम्प्रूव स्टूडेंट एबिलिटी. यानी कि वो एजुकेशन को उस हिसाब से नहीं देखते कि वो आपको एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करता है, बट एजुकेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई वर्कर्स हु ऑलरेडी हैड हाई लेवल्स ऑफ एबिलिटी. यानी कि अंदर एबिलिटी छुपी हुई है इंसान के अंदर, वो बाहर नहीं ले पा रहा है, तो हायर एजुकेशन वही हेल्प करता है कि आपकी इननेट एबिलिटी बाहर ले पाए. बाकी नई स्किल्स आप नहीं सीख सकते. तो ये जो पर्टिकुलर आपके जो दो थियरी है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है देन इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर योर सेल्फ टू गिव आउट द करेक्ट आंसर और टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर. आई होप कि मैंने आपको आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी करवाई है, और वॉट एवर आई हैड टॉट यू इट हैज़ बिन क्लियर इन योर माइंड. सो थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे. एंड द चैनल नेम इज NTUGC NET पेपर टू एजुकेशन. टिल द नेक्स्ट टाइम, keep learning and keep achieving, and do share this video among your friends so that it could help your friends in the preparation of the NET examination. Thank you so much.